Hi, good evening, everyone. Hi, Divya, how are you? I'm good, sir. How are you? Very good. Namrata? Hi, Chetan. Yes, I can hear you. Hi, Divya Prakash. Hi, 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 hi. Hi. Hello, everyone. Hello. Hello. Welcome to this session. We just wait a couple more minutes when people join. Sure. Yeah. So I'll be meeting you in person in July. Divya Prakash ji. लिखेंगे या लिख चुके हैं अभी? चलिए, we just give it another couple of minutes. Okay. तो आप अभी कहाँ हैं? मैं बॉम्बे में रहता हूँ सर. मैं बॉम्बे में ही तो यहाँ बल्कि लौटा हूँ. चेन्नई में था मैं अभी पिछले हफ्ते, तो कुछ काम से वहाँ पे था, अभी आया. वैसे मेरा घर लखनऊ में, तब अब जो हो गया. Background noise. हाँ, ये मेरे यहाँ से आ रहा है. यहाँ पे कुछ 2 मिनट में चला जाएगा. चलिए, okay, no problem. अभी भी आ रही है आवाज? अब कम हो गई. नहीं, ये निकल जाएगा. ये कोई प्रोफेशन है यहाँ पे, कुछ राम जी के नाम पे. आजकल वो चल भी रहा है यहाँ पे मंदिर के लिए भी. इंसिडेंटली अयोध्या में जो अभी भी वहाँ पे राजा वाला, तो बहुत अच्छा आर्टिकल आता है जो अयोध्या में इस समय सपोजली राजा साहब के बच्चे जो हैं, बेटे हैं, और तो वो काफी अच्छा लिखते हैं. अभी उनको नेशनल अवार्ड मिला है लास्ट ईयर बुक के लिए. लता मंगेशकर पे उन्होंने बुक की थी, और हिंदी में काफी. वो उसी फैमिली के हैं. एक ऐसा था कि एक शिफ्ट हुआ कि एक कोई जो दामाद थे उनको फिर राजा बनाया गया जब आगे वो नहीं बचे थे, जो लड़के नहीं हुए. तो फिर वो घर पे जैसे पहले आपकी आवाज बहुत कटी कटी आ रही है. Is it just me or is he freezing? He is freezing. आवाज कट कट के आ रही है. आपका बैंडविड्थ कम है क्या, दिव्य प्रकाश जी? एक मिनट में आता हूँ. So Namrata, shall we start? Chetan. I think Divya Prakash has exited and he's joining again. I'm not able to see his request though. Maybe you could speak to the participants. Okay. Yeah, while we are waiting, I'll Yeah. I'll chat a little bit. So firstly, sorry, I've been away for the first 10 days. We do an international writers retreat. And so we had a group of American writers along with the teacher who were here at the retreat. And then
We were in the Taj Mahal yesterday with 40 degrees and at 2 in the afternoon, so that wasn't fun. But anyway, I'm back now, and so is Divya Prakash ji. So, Divya Prakash ji, can you hear me? Yes. ठीक है, आप Clear है? we'll chat a little bit towards the end, but for now, Namrata, you can take it over and run this chat. Yeah. Good evening. Welcome everyone. Today we will be talking with Divya Prakash Dubey. He is India's first of now many English writers. He's been an engineer and an MBA by education, a former AGM, and who was handling marketing in a telecom company, and is now a content editor in a leading TV channel. His 3 books have been all bestsellers, 2 collection of short stories, Terms and Conditions Apply and Masala Chai, and 2 novels, Musafir Cafe and October Junction, which has started changing the aspect of youth towards life. He also has a few poems, short stories, and screenplays to his credit. Welcome to this session, Divya Prakash ji. As we had spoken, actually, ये Himalayan First Draft Club के members हैं. So पूरा अप्रैल का महीना we are actually trying कि हम सब first draft अपना complete कर सकें. So ये लोग सब अपने novels और books के अलग-अलग levels पे होंगे अभी. By the end of this month, इनका target है कि उनका first draft at least ready हो सके. Amazing. आपकी राइटिंग और पब्लिशिंग के एक्सपर्टीज से उनको काफी हेल्प हो जाएगा उस एंड सो हाफ एन आवर के बाद हम क्वेश्चंस उनके तरफ से भी लेंगे, उनके पास से भी जो भी क्वेश्चंस होंगे वो भी हम एड्रेस करेंगे. जी जी. या सो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे एक्चुअली आपने बहुत कन्वेंशनल रूट से अपना करियर स्टार्ट किया था, इंजीनियरिंग MBA, एंड फिर आप उसके बाद एक अनकन्वेंशनल रूट लेके 2013 में अपना डेब्यू किया था अपने राइटिंग से. So, how did writing happen to you? What switch कैसे decide किया? What motivated you to move to that? I'm so sorry for the voice. आज पता नहीं, आज पहली बार ऐसा हो रहा है. राम जी का जन्मदिन आज यहाँ पे हो रहा है, तो मैं को तो कुछ यहाँ होता नहीं है नॉर्मल, बट आवाज आ रही है ना मेरी अभी इधर से. हाँ, तो मैंने जॉब शुरू की थी 11 मई 2009 को, और मैंने उसी दिन सोचा था शाम को कि अब ये जल्दी से मुझे छोड़ना है कि ये हो गया मेरा. और अनफॉर्चुनेटली मैंने वो बाय द बुक जितनी चीजें हो सकती थी इंडिया में, बेटा इंजीनियरिंग कर लो, तो वो कर ली मैंने. फिर MBA करना था ठीक ठाक जगह से, सिंधी से कर लिया, और वहाँ से ABG ग्रुप में मैंने काम किया, मैनेजमेंट ट्रेनिंग था वहाँ पे. तो लेकिन पैरेलली जो सारी राइटिंग मेरे लिए थी ना, हमेशा writing was a comfort zone or a safe zone maybe, क्योंकि जब जो पहला ट्रिगर था, जैसे राइटिंग ना, बहुत मसला जो है वो बहुत आइडेंटिटी का मसला है कि आप हैं कौन. अल्टीमेटली जो मुझे लगता है कि सारे लोग, हम लोग राइटिंग से हम अपने बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं वर्सेस जब हम दूसरे की कहानी लिख रहे होते हैं. तो मैं कॉलेज में जब मैं प्ले लिखता था, तो तब तक हम 2 साल की इंजीनियरिंग की तैयारी कर चुके थे. एक ऐसे कॉलेज में पढ़ रहे थे जहाँ से नौकरी नहीं लगती थी, मैं प्राइवेट कॉलेज से पढ़ रहा था. तो जब कॉलेज में प्ले किया, और मैं 2 साल जब मैंने 12th के बाद तैयारी की, तो मैंने विवेकानंद और रजनीश, मेरे घर में बहुत किताबें पढ़ी रहती थी. इस मामले में बहुत ब्लेस्ड था कि मेरे घर में 2 चीजें ऐसी थी जो बहुत यूनिक थी. एक तो किताबें बहुत रहती थी हमेशा से पढ़ी हुई, रजनीश की, विवेकानंद की, पल्प फिक्शन सुरेंद्र मोहन पाठक से लेके पूरे दुनिया भर के इब्ने सफी से लेके एंड प्रेमचंद से लेके सब कुछ पढ़ा रहता था. एंड जो दूसरी चीज बहुत यूनिक थी हमारे घर में, हमारे यहाँ गुलाम अली के कैसेट थे जो हम बहुत शो ऑफ करते थे. हम लोग इंटेलेक्चुअल अपने आप को शो ऑफ करते थे, मेरे फादर अपने आप को, कि हम गुलाम अली सुनते हैं, हम आम लोगों जैसे नहीं है, हमारा टेस्ट अलग है, मेहंदी हसन और गुलाम अली. तो ये 2 चीजें हमारे. और फादर जो कि मेरे ब्यूरोक्रेट थे, तो एक चीज जो दुनिया में ब्यूरोक्रेट का बेटा कुछ भी हो सकता है, वो पढ़ने में खराब नहीं हो सकता, है ना. तो ये एक प्रेशर मैंने ले रखा था, मुझ पर डाला नहीं गया था, मैंने ले रखा था. तो वो बाय द बुक्स बहुत दिन तक चलता रहा. बट जब इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, जब पहुंचा, हमेशा से ये था कि मैं हूं कौन. मतलब ये अल्टीमेटली मेरी अभी तक की सारी राइटिंग इसी का जवाब है कि मैं हूं कौन. तो आप जब पढ़ते हो रजनीश और ये सब, जब अर्ली एज में 17 साल की उम्र में 2 साल आप रजनीश पढ़ लेते हो और ये सब कर लेते हो, तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो कि ये है कौन, हम कौन है. तो बट जब कॉलेज में पहला प्ले किया हमने, और 500-600 लोग थे, और पहली बार वो जो लिखा था उस पर ताली बजी और वो हुआ, तो हम 2-3 लोग थे उस ग्रुप के अभी भी जो एक्टिव है राइटिंग में, हम 2 लोग हैं कम से कम. तो जो पहली ताली बजी ना, तो जो 500 लोगों के सामने
आया, जब ताली बजी तो हमें लगा कि यार हम इतने भी खराब नहीं है इस दुनिया में, हम कुछ है हमारे अंदर कि ये इतने लोग हमें रिएक्शन दे रहे हैं, हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, हमारी बात जो पूरे हमारे मोहल्ले में कोई नहीं सुनता, यहाँ 500 लोग जिस हॉल में बैठे हैं वो मेरी बात पे कुछ खुश हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। तो हमें सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट लगा पहली बार कि कुछ है। तो 4 प्ले लिख दिए, फिर उसके बाद निकले कॉलेज से, तो कुछ ना कुछ ऐसा होता रहा कि राइटिंग चलती रही। जैसे लोग बोलते थे अरे एमबीए करोगे ना अच्छे, और खास करके इंडिया के सारे जो अच्छे एमबीए कॉलेज हैं वो एक चीज इंश्योर करते हैं कि आप एमबीए करने के दौरान और कुछ ना कर पाए। वो सारे डेडलाइन एक दिन होते हैं ताकि वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए तैयार कर रहे होते हैं मोटा मोटा। चेतन सर ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि उसमें ना, क्योंकि वो जानबूझ के इट इज डिजाइंड लाइक दैट कि आप कुछ और ना कर पाए। कॉलेज में भी प्ले लिख लिया, फिर निकले तो शॉर्ट फिल्म का कुछ किसी ने दोस्त ने बोला तो फ्री में लिख दिया, कुछ भी कर दिया। मुझे ये लगता था कि जब मैं लिख रहा हूँ तो ये मैं अपने ओरिजिनल फॉर्म में हूँ। फिर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज हुई और जो बहुत अच्छा ट्रिगर नहीं था राइटिंग के लिए, तो मैं पोएम लिखता था। और पोएम लिखने का इंडिया में ऐसा जितना मैं जानता हूँ, जो पहला ट्रिगर होता है कि आप पहली बार प्यार व्यार में पढ़ते हैं तो गुलजार साहब से इंस्पायर होके फूल पत्ती चांद सितारे वाली कविताएं लिखते हैं, है ना। वो बहुत तुच्छी कविताएं, बेकार कविताएं। बट क्या होता है, हम जब पहली बार लिख रहे होते हैं कविता तो हम क से कबूतर भी ढूंढ रहे होते हैं ना। हमें चांद में दिख रहा होता है कि कोई दूसरा भी तो आदमी दुनिया में चांद देख रहा है। जब हम ट्रेन में जा रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि अरे वो जो चांद देख रहा है कोई दूसरे शहर में भी तो चांद देख रहा है। बहुत बेसिक सी बातें, बट ऐसा लगता था। तो मैं वो सब, ये सब जब लिख रहा था तो धीरे धीरे ठीक ठाक चलने लगी कविताएं। तो मेरे को एक बार बुलाया गया, इसमें जावेद अख्तर साहब भी कविता पढ़ने वाले थे। अब ये किसी भी नए लड़के के लिए बहुत बड़ी बात है ना कि जावेद अख्तर जब आप सामने बैठे हुए ऐसे पड़ोस में बैठते हैं ना तो बैकग्राउंड में वो सब बज रहा होता है, शोले के डायलॉग चल रहे होते हैं, कभी कभी के गाने बज रहे होते हैं, वो सब वो हुआ। लेकिन उस दिन मुझे स्टेज पर रियलाइज हुआ कि मैं कविता नहीं सही से लिख पाता हूँ, है ना, जबकि बहुत परफॉर्मेंस अच्छी गई थी मेरी। तो फिर ये हुआ कि अब क्या करें, कुछ तो अंदर खलबली है। और 2012 में एक बड़ी यूनिक चीज हुई, दो चीजें हुई मेरी लाइफ में। एक तो मेरी शादी हुई, और जो दूसरी चीज हुई वो मेरा एक बॉस बदल गया मेरे, जहां मैं कंफर्ट जोन में था एकदम से। और अभी यहाँ पे टारगेट की बात की ना आप लोगों ने, मैं जब 2009 में मैं सेल्स में था तो महीने में 1-1.5 करोड़ का टारगेट होता था। रोज ऊपर से सुनते थे, आगे सुनाते थे, यही करता था। तो मैं बहुत टारगेट ओरिएंटेड मैं सबसे भी था, चाहे पूरा ना भी कर पाऊँ टारगेट। तो 2012 में मैंने जब मेरे नए बॉस आए तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम तो कुछ करते ही नहीं हो दिन भर, तो मुझे एक्सेल शीट में हिसाब भर के दिया करो दिन भर आप क्या करते हो। जैसे आजकल आईटी फर्म में बहुत कॉमन है ये कि दिन भर का एक टाइम शीट भरनी होती है ना। तो मुझे पूछा गया तो मुझे सेंस ऑफ मेरा आइडेंटिटी ही चला गया। मैंने कहा ये मैं क्या काम कर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ कि मुझे ये बताना पड़ेगा कि मैं ये कर रहा हूँ। तो मैंने हर वीक में, हमारे जो बॉस थे वो बहुत अच्छे थे, बहुत हेल्थ कॉन्शियस थे, सुपर बॉस एक्चुअली थे वो। तो वो क्या होता कि वो तो 6 बजे चले जाते थे क्योंकि उनको जिम जाना होता था, हमारी कोई लाइफ नहीं थी। तो मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता था कि, और उनका टाइम फिक्स था, आते थे फ्राइडे को काम ऐसा दे देते थे कि मंडे तक आप फंसे रहो। उसमें जो एक बड़ी यूनिक चीज हुई कि मैं इतना, हम सारी टीम जो थी और सारे हम आईआईटी आईएम और इस तरीके के, मतलब कोई एक्सेलआरआई का था उसमें, कोई एसएमबी का था, तो हम लोग इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते थे। मैं उसका वेंट आउट मैंने 2 तरीके से किया कि मैं हर वीकेंड पे एक कहानी लिखता था, और मंडे को वो तो 6 बजे चले जाते थे, तो 6:30 बजे हम बिल्कुल सत्यनारायण की कथा की तरह बैठ के हम सारे लोग सुनाते थे एक दूसरे को कि अरे यार ये। तो ऐसे ऐसे 15-20 हफ्ते लगातार। अब हर मंडे को लोगों की एक्सपेक्टेशन होगी कि अरे कुछ सुनाने वाले थे तुम तो वह मैं हर मंडे जो कहानी सुनाता था वही मेरी पहली किताब बनी बाद में। और मैं इसीलिए कभी इंटरव्यू में उन वाला बॉस का नाम नहीं लेता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उनको कोई भी क्रेडिट मिले। कि तो बट ये जो बात थी, मैं पहली किताब के बाद, मुझे सही बताऊं तो मुझे रियलाइजेशन हुआ कि राइटर होने का मतलब क्या होता है। पहला बहुत मजाक में मैंने कर दिया, और वो जो पहली किताब में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, जो सबसे कम किताब चली मेरी, लेकिन उसमें जो भी कैरेक्टर्स थे, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, जो अब शर्तें लागू नाम से आती है किताब, वो बहुत आपके इनिशियली केवल ना दोस्त लोग खरीदते हैं, 20 दोस्त, जो कॉलेज एमबीए, इससे ज्यादा लोग अगर खरीद रहे हैं तो फिर आपका सर्किल बहुत बड़ा है। पहली किताब हमेशा डिसअपॉइंट करती है आपको, हमेशा करेगी, चाहे वो अच्छी लिखी हो या खराब लिखी हो, इट डजेंट मैटर। तो मेरे 20 दोस्त थे और मैं सेल्स का बंदा था,
मैं तो टारगेट लेता था ना, आप लोगों ने जैसे लिया है टारगेट, है ना, कि एक कर देंगे। तो मैंने अपने 5-6 जो एमबीए के जो ठीक ठाक कमा रहे थे लड़के, उनको सबको टारगेट दिया, मैंने कहा 10-10 किताबें खरीदनी है और बांटनी है ना। तो मैंने उनसे 10 ने बोला, 2 ने किया ये काम और ये किया। लेकिन उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज हुई उस प्रोसेस में कि जब ये कहानी लोगों ने पढ़ी तो ये रियलाइज हुआ कि उसमें जो मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स थे, ये वो लोग थे जो हमारे मोहल्ले, हमारी दुनिया के हीरो नहीं थे, जिनको, उसमें एक कहानी एक जुम्मन मियाँ की थी जो सलून चलाते हैं, जो मुझे लगता है इस पूरी दुनिया में सबसे अच्छा अगर वर्ल्ड मीडिया है तो हमारे सारे सलून वाले लोग होते हैं, उनके पास होता है, उनको पूरे मोहल्ले का सब पता रहता है ना। उनको पता है कि शर्मा जी का अफेयर कहाँ है, शर्मा जी की बच्ची का अफेयर कहाँ है, शर्मा जी का बेटे का चक्कर कहाँ है, शर्मा जी कहाँ जाते हैं, उनका कौन कहाँ नौकरी करता है। ऐसे ही हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो कोई ये नहीं कहता अरे यार फलाने के जैसे बन जाओ, है ना। तो अननोइंगली मैंने सारे जो ऐसे लोग थे, हारे हुए लोग, उनकी कहानियां कही, जो लोगों को टच भी की धीरे धीरे। फिर दूसरी किताब भी मेरे पास कहानियां थी बहुत, की थोड़ा अब अटेंशन मिला, थोड़ा एकदम से कॉलेज में एकदम से गए तो अपने ही कॉलेज में बुलाया, ये सब किया, तो ये सब कभी हो नहीं रहा था। तो लगा कि हाँ यार कुछ 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 बात आपको पकड़ में आई। लेकिन अभी भी मेरे को ये नहीं लगता था, मैं मजाक की तरह लेता था, मुझे ये नहीं लगता था राइटर होना क्या होता है। ये मुझे तीसरी चौथी किताब के बाद समझ में आई एक बात, कि राइटर होने का मतलब ये है कि ह्यूमैनिटी के लिए कोई विजन होना चाहिए, कोई जो अननोइंगली मैं कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे आप उस, अच्छी बात क्या थी कि मैं पढ़ता चूंकि बहुत था, तो मैंने एक भी किताब ऐसी नहीं पढ़ी कि नॉवेल लिखना कैसे चाहिए। मैंने एक भी किताब ऐसा नहीं पढ़ा, मैं चूंकि बहुत, जब मैं लिखने बैठा था तब मैं 400-500 किताबें पढ़ चुका था तब तक, अलग अलग तरीके की। वो मुझे था कि ये यहाँ पे है, वो आपको रेफरेंस की तरीके से पता चलता है। लेकिन कभी राइटिंग बहुत, क्योंकि मैं बचपन में जो इमेज देखता था ना सुरेंद्र पाठक की किताबों पे या रशियन राइटर्स के किताबों के पीछे जो कवर में एक फोटो होती है, उसमें वो पाइप पी रहे होते हैं या फिर वो हैट लगाए होते हैं, है ना। तो मुझे हमेशा लगता था ये लोग जो पाइप पीते हैं और जो सिगरेट पीते हैं और ये और जो गॉगल्स लगाते हैं, ये लोग केवल राइटर लोग होते हैं, ये बड़े लोग होते हैं, कुछ इनको स्पेशल अलाउड होता है। मैं क्लास 5th-6th में ऐसा सोचता था। तो ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस थी अगेन, कि आप ये कर रहे हो, तो उसके 2013 में जब पहली किताब आई, उसके बाद से मैंने ये सोचा, एक मैंने चीज डिसाइड कि मैं अब 2 नौकरियां करता हूँ। 5 दिन में एक जगह नौकरी करता हूँ, 2 दिन में अपनी नौकरी करता हूँ, और साल भर में 104 दिन होते हैं सैटरडे संडे मिला के। और अगर आप सारी छुट्टियां जो इंडिया में मिलती हैं जोड़ दीजिए तो वो 150 से ऊपर दिन छुट्टियां होती हैं हमारी, सैटरडे संडे प्लस दिवाली, होली, बुद्ध पूर्णिमा, ये वो सब मिला दो, 150 दिन होते हैं मिनिमम, है ना। और अगर आपने प्रिविलेज लीव और कैजुअल लीव सब जोड़ दी तो 180 दिन तो हो ही जाते हैं, है ना, 170 दिन हो जाते हैं अगर आप सही से ब्लफ कर सकते हैं सिस्टम को। तो मैंने कहा कि मैं 2 नौकरियां करूंगा। एक मेरी अपनी नौकरी है जिसमें मुझे पैसे नहीं आ रहे, दूसरी वो नौकरी है जो मुझे पैसे दे रही है। मैंने उसके बाद फ्राइडे शाम को मैं स्विच ऑफ स्विच ऑन की तरह बटन करता था, और मैं मान के चलता था कि जो समय मैं दे रहा हूँ मेरा इन्वेस्टमेंट है, एंड आई हैव टू मेक इट वर्क। पहली किताब उतनी नहीं चली, कोई बात नहीं, दूसरी उससे ज्यादा चली, तीसरी उससे ज्यादा चली, चौथी फिर, एंड वो आप लकी होते जाते हो, मुझे लगता है धीरे धीरे आप थोड़ा, आपका एक दायरा बढ़ता है, लोग जानने लगते हैं, धीरे धीरे लोगों को विश्वास बढ़ जाता है, कुछ लोगों को आपकी बात अच्छी लगने लगती है। लेकिन मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि अगर मैंने वो 2 नौकरी वाला कॉन्सेप्ट नहीं सोचा होता तो मैं ये चीज नहीं कर पाता। वो बहुत जरूरी था मेरे लिए कि मैं 2 नौकरी की तरह उसको सोचूं, है ना। तो वो एक लंबा समय मैंने उसको इस तरीके से काटा कि मैं एक पैरेलल जॉब कर रहा हूँ, और ये ऐसे ही है कि ये होता है। और इसमें भी बहुत पेशेंस वाला काम ये है कि 4 साल तक एक भी पैसा नहीं आया ना आपको, आपकी किताब रॉयल्टी वगैरह छोटी चीजें हैं, मतलब वो इतना पैसा नहीं होता। स्पेशली अगर आप अच्छी जगह से एमबीए किए हुए हैं और आपको बहुत पैसा आपने देख लिया इनिशियली, क्योंकि इंडिया में एमबीए किए हुए लोग बहुत करप्ट हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी के, वो ज्यादा एकदम से दिखने लगता है ना, आपको दिखने लगता है बैचमेट ये खरीद रहा है, वो यहाँ जा रहा है, वो जा रहा है, तो वो सब पे असर होता है आपका। बट आपको लगता है कि यार ये कैसे होगा, क्या होगा। तो धीरे धीरे जो दूसरी चीज आपको समझ लगती है कि एकदम से जो सबसे इंटरेस्ट आपको रियलाइजेशन कब होता है कि आप कहीं जाएंगे, किसी लड़के ने बलिया में आपकी किताब पढ़ी है, भोपाल में पढ़ी है, और जैसे मेरी किताब मुसाफिर कैसे आई, वो पढ़ के भोपाल में एक बहुत, उन्होंने नौकरी छोड़ी और अपना काम शुरू कर दिया। 2-3 लोगों ने नौकरी छोड़ दी, जबकि मैं जिसने किताब लिखी है वो नौकरी कर रहा है ना।
लेकिन वो पावर ऑफ आइडिया है कि किसी को इतनी चीज वो कन्विंसिंग लगी कि उसने वो मेंटल बैरियर तोड़ दी। वो जो कोई इंदौर में कोई बच्चा आपको मिलेगा, वो बोलेगा कि आपने मेरे पापा की कहानी लिखी या आपने मेरी कहानी लिखी। वो जो पावर आपको देता है वो मोटिवेट करता है, वो फ्यूल करता है। और फिर धीरे धीरे मेरे केस में ऐसा होता गया कि मैं हमेशा अनफॉर्चुनेटली बहुत मैथ्स की तरह चीजों को देखता हूँ। तो एक समय पे जो समय मैं नौकरी में दे रहा था और जो समय मैं राइटिंग में दे रहा था, दोनों के पैसे बराबर और क्रॉस होने लगे। तो मुझे लगा कि अब मुझे जरूरत नहीं है। तो फिर और मैंने एक्चुअली इसी राइटिंग की वजह से कहीं मुझे बोलने बुलाया गया था, कहीं बोलने मेरा कोई टॉक किसी ने देखा स्टार इंडिया में, और उन्होंने मुझे बुलाया। तो उन्होंने कहा आप हमारे लिए शोज बनाइए। अब मैं एक तरफ नंबर क्रंचिंग करता था कुछ साल पहले तक, 25 रुपए का रिचार्ज कराने पे आइडिया में काम करता था मैं। 25 पैसे की कॉल हो जाएगी और ये हो जाएगा, और पोस्टपेड भी देखता था, लॉन्ग डिस्टेंस देखता था। आधा इंडिया संभाल रहा था, और एकदम से किसी ने कहा नहीं, आप हमारे लिए आके कहानियां सुनो और डबल सैलरी ले लो। आप हमसे दिन भर, तो दिन भर बहुत ही कूल काम था ना कि प्रोड्यूसर्स आते हैं, राइटर्स आते हैं, वो आपको कहानियां सुनाते हैं, और आप बताते हैं नहीं मजा नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा। एंड तो वो एक मिरेकल की तरह होने लगा वो वैसा। तो आपको फिर वहां पे आपने देखा कि अरे शोज ऐसे बनते हैं, शूटिंग ऐसे होती है, अपना कैसे शोज जीरो से बनाते हैं, कैसे करते हैं। तो वो चीज फिर हुई, फिर वो भी मैंने छोड़ दिया कि वो भी टाइम मेरे को मेरे राइटिंग प्रोजेक्ट से मिसमैच हो रहा था। सेम समय इंडिया में एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो रही थी, जो हमारे हीरोज थे। आप अगर देखोगे जिनका मास अपील हुई, चाहे वो कुमार विश्वास की हुई या कपिल शर्मा की हुई या मोदी जी की हुई, इरिस्पेक्टिव की उनकी आइडियोलॉजी क्या है, इरिस्पेक्टिव की उनका लेवल ऑफ ह्यूमर क्या है, इरिस्पेक्टिव की उनका डेप्थ ऑफ राइटिंग क्या है, एक इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि हिंदी को लेके एक अलग लेवल का कंफर्ट जोन आ चुका था लोगों में कि हम हिंदी बोलेंगे और हम ऐसे ही हैं। ये चीज 2005 में नहीं थी, जहाँ पे लोगों को बताया जाता था नहीं नहीं नहीं, आपको अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। और वो एकदम से जो यूथ भी था ना 2022 में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूथ है, वो आप उसको ना अरुंधति रॉय जब पढ़ने को देते हो तो उसको लगता है कि वो उसकी दुनिया की बात नहीं हो रही है। कोई राइटर ऐसा नहीं है, जैसे मुझे जो बहुत सारे लोग पढ़ते हैं उनको एक चीज लगती है, दे ट्रीट मी लाइक देयर एल्डर ब्रदर, जिनसे वो अपनी डेटिंग की प्रॉब्लम भी पूछ सकते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ भी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, जिनसे वो करियर एडवाइस भी ले सकते हैं। उनको लगता था हमारे बीच का, हमारे मोहल्ले का कोई लड़का जो है वो हमारी कहानियां उस भाषा में लिख रहा है जिसमें कैंटीन में वो बात करते हैं। कॉर्पोरेट में वो जो लोग समझते हैं वो वैसे करते हैं, जो चाय पीते हुए समय या सिगरेट के ब्रेक में जब वो जाते हैं तो उनको जो कोई बात करता है तो उनको लगा यार हमारी बातें कर रहा है कोई। वो एक इंटरेस्टिंग चेंज इंडिया में वैसे भी आ रहा था, जिसका मैं इनिशियल फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज मिल गया मुझे, क्योंकि मुझे तो वही करना था। तो ये हुआ। तो जो कन्वेंशनल जो ब्रेक 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 करने की बात है, जो कन्वेंशन, वो एज सच मेरे लिए ना बहुत स्टेप बाय स्टेप था। वो ऐसा नहीं था कि जैसे मेरे कुछ एक दोस्तों ने जैसे किया है कि बहुत परेशान है, बहुत से नौकरी छोड़ दी। मैंने वो नौकरी 8 साल की कंटिन्यू, और बिल्कुल जब सही समय आया तब वो छोड़ा। ऐसा म्यूचुअल फंड की तरह है राइटिंग, आपको नहीं पता नहीं पता नहीं पता, और एकदम से आप एक दिन दाविंची कोड लिख देंगे तो पिछली 3 किताबें बिकने लगेंगी। और मैंने बहुत सारे लोगों का भी यही देखा है जिनको मैं जानता हूँ या जो मेरे दोस्त एक्टिव है राइटिंग में, कि जो बेस्ट ऑफ द राइटिंग है वो धीरे 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 आती है। जैसे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मनमर्जिया नाम की फिल्म है जिसके लिरिक्स राइटर जो है शैली जी, वो 20 साल से लिख रहे हैं, बट जो बेस्ट ऑफ द राइटिंग है वो फिल्म में 20 साल बाद आई उनकी, पूरा एल्बम जो बहुत अच्छा था। तो ऐसे मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जिनका जिनकी बेस्ट ऑफ द राइटिंग बहुत बाद में आई। जैसे MS धोनी फिल्म जिसने लिखी, दिलीप ने लिखी है, तो वो बहुत दिनों से लिख रहे हैं, बहुत दिनों से टीवी लिखते हैं, बट उनका बेस्ट राइटिंग बहुत बाद में आया। तो वो वैसा, और वो उल्टा भी होता है, आई एम श्योर वो बहुत सारे लोगों के साथ ये भी होता है कि पहली बुक जो लिखी वो बहुत अच्छी है, उसके बाद से फिर वो डिग्रेड ही होते हैं। बट बहुत स्टेप बाय स्टेप है सच। आई एम श्योर जो आपने सवाल पूछा था उसका सही जवाब मैंने नहीं दिया है, लेकिन मैंने बहुत घुमा फिरा के जो जर्नी है मैंने कोशिश की है कि मैं बता पाऊँ कि ऐसा ना लगे कि दूसरी दुनिया से आया हूँ मैं। और राइटर लोग पहाड़ पे, जैसे वो एक इमेज जो बहुत सारे लोग सोचते हैं पहाड़ पे बैठ के, जैसे चेतन जी तो पहाड़ पे ही रहते हैं कि पहाड़ पे बैठ के दिन भर सोचते रहते हैं और कुछ आता रहता है हवा से, वैसा है नहीं, मेरे केस में नहीं है। मैं जब भी पहाड़ों पे गया हूँ लिखने, एक शब्द लिख के नहीं लौटा हूँ, और कई अटेम्प्ट कर चुका हूँ। अच्छा, तो दिव्य प्रकाश जी, हिंदी पब्लिशिंग के बारे में कुछ बताइए। आपकी पब्लिशिंग जर्नी कैसी थी? क्योंकि आप एक तो नई वाली हिंदी के साथ ट्राई कर रहे थे, तो यूजुअली हिंदी इट वाज न्यू, इट वाज डिफरेंट फॉर द रीडर्स ऑफ हिंदी। आप जो लैंग्वेज लाने की कोशिश कर रहे थे, तो पब्लिशिंग का एक्सपीरियंस कैसा था? पब्लिशर्स,
इनिशियली बहुत क्लोज थे, ओपन थे एक्सपेरिमेंट करने के लिए। रिस्पॉन्स के बारे में तो आपने बताया, बट राइटिंग के बाद का पब्लिशिंग का जर्नी कुछ बताइए, बिकॉज इंग्लिश में भी हमें पता है बहुत चैलेंजेस होते हैं, इंग्लिश पब्लिशिंग में भी काफी चैलेंजेस हैं, तो हिंदी में तो पब्लिशिंग हाउसेस भी काफी लिमिटेड हो जाते हैं फिर उस करेक्ट। इंग्लिश में फार डिफिकल्ट है अच्छे पब्लिकेशन हाउस से छपना वर्सेस हिंदी के, फार डिफिकल्ट। इनफैक्ट इंग्लिश में जो वेटिंग है वो 1.5 साल की है मिनिमम अच्छे पब्लिशर्स में। वेस्टलैंड का मुझे पता था, अब तो बंद ही हो गए वो लोग। हिंदी में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ, जो मेरा पब्लिशिंग का एक्सपीरियंस है वो बहुत अलग है। वो इसलिए क्योंकि 2005 में एक लड़का, मैं आपको एक कहानी की तरह बताता हूँ कि 2005 में मेरे जैसे ही एक प्राइवेट कॉलेज से लड़का पास हुआ, आगरा के एक प्राइवेट कॉलेज। वहां का टॉपर था, अपने गांव का टॉपर था, यूपी बोर्ड का टॉपर था। 2005 में जब वो निकला तो उसने कहा मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं अपने दोस्तों की कविताएं छापूंगा ब्लॉग में। तब ब्लॉग आ रहे थे, ब्लॉग की दुनिया शुरू हुई थी, 2-3 साल हुए थे। ये लड़का ऑनलाइन ब्लॉग के थ्रू, हम लोग जो ऑनलाइन एक दो चीजें लिखते थे, ये टकरा है। इसी लड़के ने 2011 में जाके एक पब्लिकेशन हाउस खोला। तो जो ये नई वाली हिंदी जो है, ये नई वाली हिंदी या जो ये टर्म है नई वाली हिंदी, ये शैलेश जो मेरे पब्लिशर थे और हम लोगों ने मिलके, जब हम लोग एक नए तरीके का कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो आप कभी भी देखोगे किसी भी टाइम में ना, जो कोई नई चीज हो रही होती है तो उसको एक नया नारा देने की जरूरत होती है, एक जो स्लोगन होता है। जैसे वो पंजाब में एक समय में चला साडा हक चला, हिंदी में 1954 से लेके 57 तक जो कहानियां राजेंद्र यादव, कमलेश्वर और मोहन राकेश लिख रहे थे, उनको उन्होंने उस समय में नई कहानी बोला। ये नई कहानी 1954 में नहीं बोला, 57 तक जाके इमर्ज हुआ। नई वाली हिंदी हम 2015 से हमने बोलना शुरू किया, 2018 में जाके इस्टेब्लिश हो गया वो था। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस इस चक्कर में यूनिक रहा क्योंकि शैलेश को पब्लिकेशन हाउस खोलना था, वो एक राइटर ढूंढ रहा था, वो सेल्फ पब्लिश करता था किताबों की। क्योंकि देखिए 99% पोइट्री बुक्स इंडिया में हिंदी में जो छपती हैं वो सेल्फ पब्लिश होती हैं, राइटर उसमें पैसा लगाता है। क्योंकि कोई पोइट्री, आप कितना भी नाम ले लीजिए, हम कितना भी नाम ले लें, गिन के हम 5 किताबें लोगों के घरों में देखते हैं, वो गुलजार साहब, पीयूष मिश्रा, जावेद साहब की, अब थोड़ी बहुत इरशाद कामिल या मनोज मुंतशिर की, थोड़ी बहुत, बहुत मिनिस्क्यूल है वो। जो ट्रेडिशनल पब्लिशर्स थे हिंदी के, वो ठीक वैसे थे जैसे कि 80s की फिल्मों के विलेन होते हैं, सफेद कपड़े पहने, जिनको आप एक झटके में पहचान सकते हो कि ये सफेद कपड़े पहने सिगार जो पी रहा है ना, यही विलेन है। पहले की फिल्मों में बताने की जरूरत ही नहीं है ना विलेन है। 80s की कोई फिल्म उठा के आप देख लीजिए, 70s की, वो जैसे उसने सफेद कपड़े में वो समंदर के किनारे खड़ा है, अभी उसको पता है माल उतरना है, स्मगलिंग हो रही है वर्सोवा के बीच पे, है ना। तो हिंदी के सारे पब्लिशर 2022 में भी, 20 में भी और 12 में जब मैं आया था, सारे के सारे वैसे हैं। दे आर नॉट ओपन टू न्यू राइटर्स। इनफैक्ट नई वाली हिंदी के बाद से उनको ये मजबूरी हुई कि आप इनका जवाब क्या दें। ये जो नया क्योंकि देखिए क्या है हिंदी की पब्लिशिंग, अनफॉर्चुनेटली, और ये मेरे को ये बोलते हुए बहुत दुख होता है, वो सारा मॉडल हिंदी में क्या हुआ 2000 के बाद से। जो आखिरी बड़े राइटर मेरे हिसाब से हिंदी में थे वो थे मनोहर श्याम जोशी, श्रीलाल शुक्ला, ये वो लोग थे। जैसे मनोहर श्याम जोशी वो थे जिन्होंने बुनियाद और हम लोग करके सीरियल भी लिखे थे, है ना। तो उसके बाद से क्या हुआ कि कई सारी इस देश में लाइब्रेरी हैं। एक राइटर ने कोई किताब लिखी, कबीर पे या XYZ किसी पे लिखी, मध्य प्रदेश की लाइब्रेरी में 5000 किताबें सब्सक्राइब हो गई, किताब की MRP 500 रुपए है, 20% पब्लिशर को गया, 20% राइटर को गया। आई एम श्योर वो मैथ्स बहुत इतनी भी बड़ी नहीं है, लेकिन हमने वो सोचा ही नहीं कि हमें B2C बिजनेस करना है, हमें कस्टमर तक पहुंचना है, पाठक तक पहुंचना है। एक नया जो एक ब्रीड आया जिसने 100 रुपए की किताब निकाली हो, एक ये की, ये शुरू हुआ। उसका एडवांटेज ये हुआ कि अब ऐसे कई सारे छोटे 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 पब्लिशर्स आ गए जिनको लगा कि नहीं हम बेच लेंगे किताबें। जैसे जब मैं आया था तो हमारे समय में अगर किसी की 1000 किताबें बिक जाती थी तो ये बहुत बड़ा इवेंट हो जाता, लोग मानते नहीं थे कि 1000 है। आज की डेट में हम लोग 1.5 लाख के ऊपर बिक चुके हैं, है ना। और हमें लगता है कि हम जो जब मैं आ रहा था हिंदी में, तो मेरा जो कंपटीशन था वो हिंदी का कोई दूसरा राइटर नहीं था, हमारा कंपटीशन ही उस समय भी हम कॉम्पीट करते थे कि हम करण बजाज जितना बिक जाए, हम एक बार कोशिश करें कि शायद आनंद नीलकंठन जितना बिक जाए। मैं ये सोचता था कि हम इनको क्यों नहीं ब्रेक कर सकते, हम ये क्यों नहीं कर सकते। तो ये था। तो जो मेरे लिए जर्नी रही वो थोड़ी अलग अलग, फिर भी मैं अगर बता देता हूँ, अगर कोई हिंदी में लिखना चाहे तो उसके लिए जर्नी क्या हो सकती है।
एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, एक मनोज श्याम जोशी जो राइटर, उनके एक इंटरव्यू की बुक में थी, तो उन्होंने बहुत सही से डिफाइन किया था हिंदी की पब्लिशिंग को और इन जनरल राइटर्स की दुनिया को। दो चीजें बताता हूँ कि हिंदी में उन्होंने बड़ा बोला था कि हिंदी में पीठ ठुकवाने के लिए पैर दबाना पड़ता है। उसका मतलब ये था कि आपको जो पब्लिशर्स हैं, जो ट्रेडिशनल जो 80s के विलेन है सफेद कपड़े वाले, उनको जाओ दोस्ती करो, फिर कई सारी मैगजीन में उनके दोस्तों को बोलो, एक एक नहीं होता है जैसे कि नेटवर्किंग करो, ये करो, बहुत लंबा प्रोसीजर था। और उसमें भी आपको वो तभी बताएंगे कि अरे जब आप वो करो तो वो, और बहुत लोगों ने वो किया, उनके नाम हमें नहीं याद है जिन लोगों ने किया, है ना। वो इवेंट्स में वहां पे लोग ऐसा बता देते हैं कि हम ये प्रेमचंद पैदा हो गए नहीं हिंदी में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो वो तरीका तो सही था नहीं। दूसरा एक मुझे बात, संजय चौहान राइटर हैं जिन्होंने एक फिल्म, आई एम श्योर आप लोगों ने शायद देखी हो या नहीं देखी हो, पान सिंह तोमर नाम की एक फिल्म आई थी, जो उसके राइटर हैं संजय चौहान। तो संजय चौहान ने मुझे मजाक में एक बार बोला था, उन्होंने बोला कि दिव्य, ऐसे ही चलते फिरते मिले मुझे कि और क्या चल रहा है, मैंने कहा सही चल रहा है। कहते यार हिंदी में बस दो ही लोग अच्छा लिख रहे हैं। तो मैंने कहा कौन? तो कहता है एक तुम और एक मैं, एंड विच इज सच अ सटायर ऑन दिस होल हिंदी वर्ल्ड। हिंदी में यही हो रहा था दिल्ली में, जो कुछ लोग बैठे थे। लेकिन अब इंटरेस्टिंगली बहुत डेमोक्रेटाइज हो गया है स्पेस पिछले 5 साल में। अगर आपको है तो कम से कम जो बड़े वाले 2 पब्लिशर्स हैं, उन्होंने अपने थोड़े दरवाजे खोले हैं। तो जो आज से 8 साल पहले स्थिति खराब थी, अगर आप देखोगे बहुत सारे, इसीलिए हिंदी में बहुत एवरेज किताबें भी आई, क्योंकि एक जो पब्लिकेशन ने रिजेक्ट कर रहा था और लोगों को लगता था क्या नया, हम कैसे काउंटर करें। इसीलिए अगर आप देखोगे तो एक पब्लिकेशन हाउस ने रवीश कुमार की किताब छापी, क्योंकि रवीश कुमार से पॉपुलर हिंदी बेल्ट में कोई नहीं, जो रोज टीवी पे आ रहे हैं, रोज ओपिनिएटेड है, रोज कोई ना कोई बात कर रहे हैं, येट वो काउंटर नहीं कर पाए उनके नंबर से भी। लेकिन फिर भी वो अटेम्प्ट हुआ, ये अच्छी बात है, एक डेमोक्रेटाइज होना शुरू हुई चीजें, अच्छी बात है। तो हिंदी में भी जैसे 1.5 साल की वेटिंग नहीं है, लेकिन किसी भी पब्लिकेशन हाउस में आप किताब देते हो तो उसके बाद से मिनिमम 4 से 6 महीने का समय लगता है। जो मेरे पब्लिशर है, उन्होंने एज अ पॉलिसी ये डिसाइड कर रखा है कि वो 1 से 1.5 महीने में जवाब दे देते हैं कि वो छापेंगे या नहीं छापेंगे। सेल्फ पब्लिश अब कम करना शुरू कर दिया उन्होंने, लेकिन अगर आपको बहुत जल्दी है छपने की तो सेल्फ पब्लिश भी कर देते हैं, बट सेल्फ पब्लिश में भी मेरे ख्याल में उसका मिनिमम टाइम शायद 6 महीने लग जाता था। बट ऐसे बहुत सारे प्लेयर आ गए जो ठीक है, जो मेहनत कर रहे हैं उस पर, और बड़े वालों ने भी अपना एक विंग खोल दिया इस नई दुनिया के लिए, कि अब इतनी भी बड़ी बात नहीं रह गई कि वहां पे आपको कांटेक्ट बनाना पड़ेगा, आपको बहुत वो जी हजूरी करनी पड़ेगी और पैर दबाना पड़ेगा। तो उस लिहाज से हिंदी का स्पेस खुल गया है, काफी खुल गया है। पोइट्री थोड़ा सा ट्रिकी मसला है, बट कहानियां लोग नई ढूंढ रहे हैं। और इनफैक्ट एक और नई चीज हुई, जो क्योंकि मैं एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में भी था, बहुत सारे लोग किताबें ढूंढ रहे हैं अडेप्ट करने के लिए। जो पुरानी किताबें लिखी गई हैं वो अडेप्टेबल नहीं है इतनी, या तो उनका लैंडस्केप इतना बड़ा है कि वो अडेप्ट नहीं हो सकती, या फिर वो बात पुरानी हो गई है ना। तो वो बहुत, क्योंकि हर क्या होता है ना, हर 10 साल में और अब तो 5 साल में जनरेशन बदल जा रही है, बहुत तेजी से सब कुछ बदल रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली राइटर्स जो है, जैसे मैंने अभी एक शो किया है, लिखा है हम लोगों ने भी, हमने एक वेब सीरीज, मैंने और एक लड़के ने लिख के भेजी है। वो 22 साल का बच्चा है जो जिसने लिखा है साथ में मेरे, सीतामढ़ी में रहता है, वो बॉम्बे नहीं रहा कभी ज्यादा, सीतामढ़ी में रहा है। मुझे एक कहानी वहां की कहनी थी, मेरी एक पुरानी कहानी में हम लोगों ने बनाया बेस, सीतामढ़ी की कहानी हमने आज की कही है, 2022 की। और वो हमने वेब सीरीज लिखी, हमने बेच दिया आगे, वो जब बनेगा तब बनेगा। लेकिन मुझे बहुत जरूरी था जानना कि 20 साल का लड़के का आज की डेट में वर्ल्ड व्यू क्या है। मैं जब लिखूंगा 20 साल के लड़के का ना, तो मैं 90s का लिखूंगा, जो मेरी यादों में है कच्चा शहर, वो मैं नहीं चाहता था। बट आज आप अगर नॉस्टैल्जिया लिखोगे तो वो नीलेश ने लिख दिया, मैंने लिख दिया, वो इतना लिख चुके हैं ना हम लोग कि वो घिस चुका है। अब वो दादी के नानी के अचार और जामुन के पेड़, इनसे नई इमोशन नहीं वो होते, अब वन हैज टू गो बियॉन्ड दैट। तो वो एक चीज है, हिंदी में मैं कम से कम बता सकता हूँ, इंग्लिश में मुझे नहीं आइडिया है उतना, कि क्योंकि वहां पे इंग्लिश में अलग, जैसे मैं देखता हूँ कि माइथोलॉजी बहुत चलता है, और जो दूसरा है वो जो बहुत वैसा लिटरेचर है वो मैं पढ़ नहीं पाता, जिस तरीके का आता है वो। तो ये है मतलब इसमें कि हिंदी में बहुत अपॉर्चुनिटी है इन टर्म्स ऑफ नॉवेल, इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन। क्योंकि अभी भी आप देखिए ना, छोटे शहरों में बहुत सारे लोग प्ले करते हैं, वो सारे प्ले हिंदी में करते हैं। तो आपकी कहानी को केवल एक वो दायरा नहीं मिलता है, वो फैलती जाती है,
उस लिहाज से भी। तो वो भी काफी स्पेस है अगर आप हिंदी में अबव एवरेज लिख लेते हैं तो, है ना, क्योंकि बाकी तो हमारा सारा पेरीमीटर हमसे होता है ना, हम अपने से ही बेहतर लिख सकते हैं। क्योंकि मैं तो ऐसे तो लिख ही नहीं पाऊंगा मैं कभी ना, क्योंकि मुझे पता है कि मैं मनोहर श्याम जोशी जैसा नहीं लिख सकता, मुझे पता है मैं राही मासूम रजा जैसा नहीं लिख सकता। तो बट मैं अपने से बेहतर लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा हूँ, वो बेंचमार्क क्लियर होना चाहिए। काफी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है आपकी। सो यू हैव कार्व्ड अ नीश फॉर योरसेल्फ, आपने अपनी खुद की एक जगह बनाई है। आपका लैंग्वेज जो हिंदी का है, जो आप नई हिंदी जो बोलते हो, आपके लिखने का जो तरीका है, जो कहानियां आप कहते हो। सो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे किसी राइटर को जो ये करना चाहते हैं, जो कुछ अलग करना चाहते हैं, और अभी उन्होंने मतलब डेब्यू नॉवल लिख रहे हैं, अभी उनका डेब्यू नहीं हुआ है, क्या टिप्स देना चाहेंगे? मैं एक चीज बस बोलूंगा कि इरिस्पेक्टिव, मतलब आपको ना कभी ना कहानी को लैंग्वेज के पैरामीटर पे नहीं देखना चाहिए। क्योंकि ना इम्पोर्टेंट बात, मैं मतलब ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल बात है कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, और जितनी मैंने किताबें पढ़ी, कि जो भी बड़ा राइटर या हम कभी भी ना नॉवेल जो है ना, जैसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूँ कि कई सारे लोग जब नॉवेल पिच करते हैं ना पब्लिशर को, तो वो कॉन्सेप्ट बताते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट ये है। इस दुनिया की कोई भी अच्छी किताब ना कॉन्सेप्ट पे नहीं बिकती है, चलती है। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, स्टाइल ऑफ राइटिंग पे चलती है। वही बात कोई और लिखेगा तो वो कहानी बदल जाएगी, है ना। ये 99 कोई किताब आप ये नहीं कह सकते अरे बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था तो 400 पेज का नॉवल नहीं होल्ड करता वो अच्छा कॉन्सेप्ट। वो आपकी अपनी जो एक स्टाइल होती है कहने की, वो जो एक होते हैं ना कुछ दोस्त जो कोई छोटी सी चीज होगी और वो ऐसा घुमा के बताएंगे, अरे जैसे मैं परसों नरसों देख रहा था, कादर खान का था कि कोई नॉर्मल डायलॉग राइटर होता वो लिखता मैं गरीब हूँ। कादर खान कैसे लिखते थे, न पीने को सिगरेट है, न पहनने को कपड़े हैं, न रहने को चौल है। वो कादर खान का एक स्टाइल था जैसे वो कहने का, वो सेम चीज को इतना घुमा के और अच्छे से कहते थे कि इम्पैक्ट होता था उसका। तो जो हमेशा वर्क करता है कि आप किस तरीके से वो बात कर रहे हैं, और वो भाषा उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन भाषा ही सब कुछ नहीं है। जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि मान लीजिए आप झांसी की कोई कहानी कह रहे हैं, तो आप झांसी कितना उसमें ला सकते हैं। जो एक चीज लोग मिस करते हैं ना, जो एक चीज हिंदी फिल्मों ने भी बहुत खराब की, कि हम ना एक ऐसे हाइपोथेटिकल जगह की कहानी कहते हैं जो कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। मुझे लगता है आज की डेट में लोग इतना माइक्रो चीजें देखना चाहते हैं कि अगर आप उनको बता रहे हो कि मैं बॉम्बे में अंधेरे की कहानी कह रहा हूँ, तो लोग जाके क्रॉस चेक करते हैं मैप पे कि ये है भी कि नहीं है। ये जो आपने मसूरी में बताया था मुसाफिर कैफे, ये है कि नहीं है। ये आपने जो बताया था, आप वो दुनिया कितनी ला रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई ऐसा है जो बैंक में काम करता है, जैसे रवि सुब्रमण्यम ने पूरा करियर ही अपनी बैंक की नौकरी और किताबें लिख के बना लिया जैसे उन्होंने। अगर आप मान लीजिए कहीं ब्यूरोक्रेट हैं या आप कोई कॉर्पोरेट में हैं, अभी भी हिंदी में एक भी अच्छी किताब नहीं है जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड पे हो, जबकि 92 के बाद से पूरी दुनिया बदल चुकी है यहाँ की, एक नई रियलिटी है ना। मैं हमेशा मजाक में कहता हूँ कि कार्ल मार्क्स ने जब अपनी थ्योरी दी होगी तो उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि कुछ व्हाइट कॉलर एम्प्लॉय ऐसे भी होंगे जो कंपनियों का भी शोषण करेंगे, उनकी कहानियां कौन लिखेगा। तो वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आप वो जो दुनिया है ना, वो कितनी ऑथेंटिसिटी है उसमें, वो ईमानदारी कितनी है, वो बहुत जरूरी है। वो मुझे लगता है वहां पे लोग, वो कमी लगती है मेरे को कि हम जब बनारस की कहानी कह रहे हैं तो हमें बनारस चमकने लगे बिल्कुल, और वो ऐसा बनारस हो जो हमने बाकी किताबों में जो पढ़ा है या फिल्मों में देखा है उससे अलग हो। और वो बस एक गली दूर होता है, ज्यादा दूर नहीं होता है, एक नई गली होती है बस। वो गली आपने पकड़ ली तो आप कर लेंगे। जो मुझे लगता है कि वहां तक शायद मेहनत नहीं करते लोग, या शायद वो विजन नहीं बनता, क्योंकि इस शुरुआती राइटिंग में आपको समझ नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ कि जब मैं एक किताब मैंने बीच में लिखी थी इब्ने बतूती नाम की, वो 1990 का उसमें एक जिक्र था, एक पैच था 1990 का दिल्ली का हिंदू कॉलेज का। तो 1990 का वो जो मंडल कमीशन का समय था, मैं उसमें बहुत छोटा था, तो मुझे मंडल कमीशन की हवा नहीं थी कि क्या है क्या नहीं है। तो जब मैं उसको लिख रहा था, केवल 10 पेज लिखने थे पूरी बुक में, लेकिन उसके लिए उस आंदोलन में जो लोग थे, वो रोशन अब्बास से लेके जो वहां प्रेस रिलीज बनाता था, वो करता था, वो मैंने घंटों की रिकॉर्डिंग रखी अपने पास, जस्ट टू गेट दैट वर्ड राइट। केवल 10 पेज पूरे 160 पेजेस में से। वो मेरे लिए जरूरी है, भले मैं उसका कुछ भी नहीं। जैसे इसी चीज को एक और चीज से समझाता हूँ। एक पिक्चर आई थी जॉली एलएलबी, जिसमें सौरभ शुक्ला जज थे।
आप देखोगे उसमें ना जब सौरभ शुक्ला आते हैं तो वो एक सीन है वहां पे, अगर आपने नहीं देखी है, जो लोग सुन रहे हैं, तो अगर आप देखोगे, सौरभ शुक्ला आते हैं, वो आता है, पंखा नहीं चल रहा है, एसी चल नहीं रहा, काम नहीं कर रहा, एकदम से आते हैं, वो कप लेते हैं और ऐसे चाय पीते, कहते हैं अरे यार फिर ठंडी चाय, ऐसे बोलता है। आप ये सोचो ना कि वो इतने से इवेंट में वो बता देते हैं कि ये रोज का है और रोज ठंडी चाय होती है, कहीं से आदमी थका हुआ आता है, फ्रस्ट्रेटेड है, ये सब कुछ है। ये चीज उन्होंने सोची थी कि ये होता है जैसा, वरना वो आते नॉर्मल क्लीशेड राइटिंग क्या है उसमें, आएंगे ऑर्डर ऑर्डर केस शुरू करो, उससे भी कहानी कन्वे होती, कहानी भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट द स्टाइल ऑफ राइटिंग चेंजेस एवरीथिंग। उससे पहले हमने 1000 जज देखे हैं फिल्मों में, मिलॉर्ड मिलॉर्ड करके, बट सौरभ शुक्ला चेंज इट, द लैंडस्केप ऑफ द इंडियन जजेस। वो है कि वो इतनी छोटी सी चीज है, वो केवल ये बोल रहा है कि अरे यार फिर ठंडी चाय, और वो सब कुछ बदल देता है। तो मुझे लगता है बस वो एक गली दूर होता है, वो ऑथेंटिसिटी अगर हम अचीव कर पाए तो वो बहुत जरूरी है, स्पेशली पहली किताब में, क्योंकि पहली किताब में आप कभी इस बात पे नहीं जज किए जाओगे कि आपका क्राफ्ट कैसा है ना। और अगर आप किताब लिखना चाहते हो ना, तो हमेशा ना इसको लॉन्ग टर्म हेल्थ की तरह लेना चाहिए और म्यूचुअल फंड की तरह लेना चाहिए, कि मैं लॉन्ग टर्म में, जैसे बहुत सारे लोग हेल्थ बनाते हैं, कहते हैं मैं 3 महीने में वजन कम करना है, 1 महीना में कीटो कर लूंगा और मैं वो इंटरमीडिएट फास्टिंग करके ना मैं 10 किलो वजन कम कर लूंगा। दैट्स द रॉन्ग अप्रोच। हेल्थ लॉन्ग टर्म इशू है, लॉन्ग टर्म फोकस चाहिए हेल्थ को। तो आपको जो किताब पे आप लिख रहे हो, तो क्राफ्ट बहुत छोटी चीज है उस पूरे गेम की, वो आप सीख जाओगे, वो आप जान जाओगे, आप अपना क्राफ्ट डिस्कवर करोगे। बात यह है कि जिस कैरेक्टर की मैं कहानी कह रहा हूँ, क्या वो मैं उसको बेस्ट फ्रेंड की तरह दिखा पा रहा हूँ, उसके बारे में मैं सब कुछ बता पा रहा हूँ, क्या वो मेरा बेस्ट फ्रेंड हो पा रहा है पढ़ने के बाद, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वो सब होता रहेगा, बाद में आप खुद ही जान जाओगे कि अरे, जैसे हर किताब अगर आपको लिखने के बाद अपनी अच्छी लगती है तो मतलब प्रॉब्लम है। मैं कोई भी किताब अपनी आज तक नहीं पढ़ पाया आने के बाद से, मुझे हमेशा गुस्सा आता है यार ये भी रह गया वो भी, बट वो आपको एक पॉइंट पे अबेंडन करना पड़ता है ना, कि नहीं नहीं बस हो गया, ये अब निकालना है इसको, है ना। लेकिन वो बहुत जरूरी है कि जो मैं दुनिया लाऊं वो असली लाऊं, क्योंकि ना देखिए नकली चीजें इतनी है दुनिया में ना, इतना बॉम्बार्डमेंट है। आप कभी अगर न्यूज, मैं तो नहीं देखता अनफॉर्चुनेटली न्यूज, लेकिन अगर आप देखो कभी गलती से नजर पड़ जाती है किसी को देखते हुए, वो आधे से ज्यादा टाइम क्या न्यूज है कि इन्होंने ये कहा, जवाब में उन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा। अगर आपको न्यूज वर्ड क्रिएट करना है तो आप पीछे से घुसो उसमें और देखो जाके कि कैसे क्या हो रहा है। दूसरे मुझे लगता है कि जो इस समय बेस्ट ऑफ द राइटिंग हो रही है दुनिया में, वो लोग फिल्मों में कर रहे हैं। दे आर क्रिएटिंग द महाभारत ऑफ टुडे, लाइक ब्रेकिंग बैड की जो राइटिंग है, वो मतलब उसको इसलिए नहीं, मतलब केवल विजुअल मीडियम को भी इसलिए नहीं देखना चाहिए कि वो मुझे लगता है आज का लिटरेचर है वो। तो कई बार हमें उनसे भी बहुत कुछ कई सारी छोटी छोटी चीजें, हम इतनी छोटी सी चीजें बदल देते हैं कि आपको लगता है अरे यार आपके लिए कोई नई चाबी खुल जाएगी जीवन की, या राइटिंग की, या एक्सप्रेशन की। और जो तीसरी चीज मुझे लगता है कि हमेशा जो इनिशियली राइटर्स करते हैं, हमेशा एक ऐसा ग्रुप रखना चाहिए जो आप राइटिंग करते हो। हम लोग क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग जब इनिशियल राइटिंग कर रहे होते हैं तो हम किसी एक को इम्प्रेस करना चाहते हैं। एक हमारे दिमाग में एक हाइपोथेटिकल एक बंदा होता है जिसको हम बहुत इंटेलिजेंट मानते हैं या बहुत मानते हैं कि इन्होंने कह दिया ना तो मतलब मेरा जीवन सफल हो गया। मुझे लगता है वैसे नहीं अप्रोच होना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको अलग अलग एज ग्रुप के लोगों का एक बनाना चाहिए ग्रुप। कोई उसमें 20 साल का भी हो, 30 का भी हो, 40 का भी हो। कोई ऐसा हो जो बिल्कुल किताबें ना पढ़ता हो, कोई ऐसा हो जो बहुत किताबें पढ़ता हो। द चैलेंज इज कि जिस दिन आप कट अक्रॉस करने लगेंगे ना, उस दिन मजा शुरू होगा राइटिंग का। वो भूल जाते हैं लोग, और भूल भी नहीं जाते हैं शायद, वो उतना विजन नहीं होता है शुरू में। मैं अपनी उम्र के हिसाब से ज्यादा ज्ञान दे रहा हूँ, मेरे से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग मुझे लगता है इस जूम कॉल में है। और काफी काफी इंटरेस्टिंग आंसर था, काफी कुछ सीखने के लिए था। एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चंस? वी वुड लाइक टू ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस फॉर दिव्य प्रकाश जी. You can either leave them in the chat box or just unmute yourself and ask him. Yes, Chirag. Yeah. Yes. नमस्ते। मैं सोचता हिंदी में हूँ, लिखता इंग्लिश में हूँ. This is my difficulty. But I am a very big lover of Hindi literature. I am not a very big reader, but I love Hindi as a language.
ये जो आपने बताया ना कि 22 साल की लड़के की सोच क्या होती है, this becomes also very regional specific also, right? Suppose if my character is say 22 years from say Chennai, okay, so it becomes all the more difficult, right? Exactly. How do you break this? How do you break this? Because what I experience is whenever I have talked to my nephews and nieces, they are all youngsters and they have no time for any discussion. You know, they are always in a hurry, and the second thing is they want instant gratification. Abhi Right, ka right. bhi jo natija chahiye. Right. How do you break ice with these youngsters? सर पहले तो रिश्तेदारों में कभी रिसर्च नहीं करनी चाहिए, वो Thank you कभी very आपको much. सही से नहीं वो आपको Right. कभी नहीं बताएंगे, कभी भी नहीं बताएंगे, कभी भी नहीं बताएंगे, है ना? Right. और वो उनका नहीं बताना बिल्कुल ठीक है, आप भी होते 22 साल के तो नहीं बताते, है ना? तो मुझे ऐसा लगता है, देखिए एक चीज हम भूलते हैं, हम लोग ना एज अ इंडियन ना, अगर कहीं हम काम से जा रहे हैं ना और कोई सड़क पे एक्सीडेंट हुआ है, कोई झगड़ा हो रहा है, हम काम छोड़ देते हैं, थोड़ी देर के लिए हम कान लगा लेते हैं कि अरे क्या हो गया, है ना? हम लोग टिपिकल वो रेलवे कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं जो इस बात पे वहां लड़ाइयां जीती जाती हैं, सही या गलत से लड़ाइयां नहीं जीती जाती, जहां इस बात से लड़ाई जीती जाती है कि किसको कितनी पुरानी बात याद है, पहले ये हुआ था, तब तुम कहाँ थे, है ना? मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा सा भी अगर जैसे इसको ऐसे मान लेते हैं, आपको किसी 22 साल के चेन्नई के किसी लड़के को पकड़ना है या किसी को आप जानना चाहते हो, उसका जो आइडियल तरीका है ना कि आप के अगर कोई दोस्त हैं ऐसे जिनके इस एज ग्रुप में बच्चे हैं या वो हैं, उन बच्चों के की दुनिया में ना एक दिन जाइए, एक बार ऐसी कैफे में उनको खिलाइए पिलाइए। देखिए कभी भी ना डायरी लेके या कॉपी लेके नहीं बैठना चाहिए रिसर्च पे, क्योंकि ना लोग गार्डेड हो जाते हैं, है ना? Absolutely. और खाते समय हमेशा ये होता है कि आदमी कंफर्ट जोन में जाता है, उनको ना आपके साथ दोस्त जैसा फील करेंगे, वो एक बात ऐसी बता देंगे कि तब, और वो हमेशा जो लोग आपके सीधे जान पहचान के नहीं, जिनको कोई थ्रेट नहीं है कि ये मुझे जानते हैं, जैसे आदमी जान जाते हैं मुझे जानते हैं, तो आदमी क्लोज कर लेता है अपने आप, और वो जानना भी एक अजनबी वाला ही होना चाहिए। तो मुझे लगता है थोड़ा आप अगर नीस को ही बोलेंगे किसी को, या इनको बोलेंगे कि अपने वहां में जा रहा हूँ, किसी दोस्त से बोल दे, वो आपको ज्यादा बेहतर बता देगा, है ना? आप और कोई आपको जरूरी नहीं है कि आप सच बताएं कि आप कहानी लिखने जा रहे हैं, आप मार्केट रिसर्च के भी एजेंट बन सकते हैं कभी भी, क्योंकि ना कहानी में लोग बहुत गार्डेड हो जाते हैं, वो बिल्कुल अपने आप को रोक लेते हैं, नहीं बताते। इसीलिए आप उसको जब जैसे ही फैलाएंगे तो आ जाएगा। इनफैक्ट इसका सही तरीका तो कोई एक नहीं है, लेकिन आप मैं एक बहुत बेसिक, जैसे ना मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक मेरे पिताजी सेल्स टैक्स में थे, और सेल्स टैक्स में एक समय पे जब मैं बताता था कि मेरे पिताजी सेल्स टैक्स में है ना, तो अपने आप लोग इमेजिन कर लेते थे कि एक अटैची और खूब सारे पैसे रोज घर में आते होंगे, ठीक है? तो एक हमारे यहाँ एक दीक्षित अंकल थे, अब तो नहीं रहे वो बेचारे। तो दीक्षित अंकल जैसे एक तो तरीके पैसा, ये सर ये यूट्यूब पे जाएगा क्या ये? अच्छा चलिए मैं नाम बदल देता हूँ। तो उसमें जो ट्रेडिशनली जो लोग कमाते थे पैसा, उसके दो तरीके होते थे कि एक आप फाइल पढ़ें, जो ब्यूरोक्रेट्स करते हैं नॉर्मली, एक अच्छे से आप फाइल पढ़ें, उसमें कोई कमी निकालें और पकड़ लें, और फिर देखिए किसी भी सरकारी अधिकारी का काम क्या है, राई को पहाड़ बनाना और पहाड़ को राई बनाने के पैसे ले लेना, है ना? तो इसमें एक अंकल थे हमारे, उनका नाम तो म्यूट करना पड़ेगा। तो वो क्या करते थे, वो बहुत बेसिक पे काम करते थे। वो कोई पता चला कि कोई एक शहर है जहाँ पे दिन भर में लोहे की सरिया की गाड़ियां निकलती हैं। वो दिखाता है महीने में 10 गाड़ियां निकलती हैं, है ना? 10 का कागज बनाया, 10 का बिल लगाया, 10 पे टैक्स जमाया, कहीं कोई चोरी नहीं। वो दूसरा काम करते थे, वो एक लड़के को हायर किया था उन्होंने, उसको महीने में 10,000 रुपए देते थे। उसको पान की दुकान पे, चाय की दुकान पे, उस स्टील की फैक्ट्री के बाहर बैठा देते थे। रोज शाम दिन भर बैठता था, उसको पैसा देते थे, और रोज शाम को आके बस एक ही चीज बताता था, आज 2 ट्रक निकले, आज 4 ट्रक निकले, आज 5 ट्रक। तो अंकल को अब ये पता रहता था कि यहाँ महीने में 50 ट्रक निकलते हैं और ये टैक्स देता है 10 ट्रक का। अब वो 40 ट्रक का नंबर होता था, उसका भरा हुआ होता था, और उस 40 ट्रक का जितना टैक्स बनता था उतना वो रिश्वत ले लेते थे। ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत बेसिक तरीका है ना, बिल्कुल जड़ तरीका है, बिना पढ़े लिखे लोगों का तरीका है, बिल्कुल वैसा है, बट ये इंटेलिजेंट तरीका था। तो जो एक कहा जाता है हमेशा, जो कानून की भाषा में, कि मौका वारदात पे जो आपका कैरेक्टर है उसकी एक दुनिया होगी ना, कोई जो आपने इमेजिन किया है। आप किसी कॉलेज में किसी से बात करना चाहते हैं, किसी भी रैंडम कॉलेज में, जस्ट विजिट दैट कॉलेज,
मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है कि आपसे कोई बात करने को तैयार नहीं होगा। लोग बात करना चाहते हैं, वो ब्रेक करना चाहते हैं। हम लोग कई बार अपने उसमें रह जाते हैं कि नहीं यार मैं कैसे जाऊं। एक बार वो आप ब्रेक कर देंगे ना तो फटाक से वो खुल जाएगा, आपकी वो दुनिया खुल जाएगी। इनफैक्ट ऐसी ऐसी चीजें आपको पता चलेंगी जो आपने सोची भी नहीं होंगी। तो वो मुझे लगता है वो थोड़ा एक एक्स्ट्रा, और राइटर्स की यही सबसे अच्छी बात है कि इसीलिए मैं हमेशा मानता हूँ कि राइटर्स को सेलिब्रिटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ना दे शुड बी पार्ट ऑफ देम, पार्ट ऑफ पीपल। वो चुपके से आए और पता ना चले, और उनको पता ही ना हो कि कहानी कोई हमें देख रहा है, बट आपके दिमाग में होना चाहिए कि हम कहानी बना रहे हैं, बस। तो वो, और किसी भी, जैसे आप किसी भी कॉलेज चले जाइए, कहीं पे भी कोई एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, जैसे मैं आपको एक और किस्से से बताता हूँ। जैसे रोशन अब्बास ने सुनाया था मेरे को, काफी आरजे उन्होंने किया, कई सारे एक्टिंग की, फिर शोज बनाते हैं, अभी बहुत अच्छा कॉम्यून चलाते हैं। तो उनका एक किस्सा वो बता रहे थे कभी कि लखनऊ में उनको रेडियो में जाके कुछ अनाउंस करना था, भी अनाउंस कर सकता हूँ। तो वहां पे एक जो पियोन था, उसको उन्होंने चाय वाय पिलाई। कहते और क्या काम, रोज जाके चाय पिलाते थे वो अपना। कहते और क्या क्या, कैसे बेटा, कैसे यहाँ क्या करते हो? मैंने कहा बस ऐसे ही थोड़ा सा था, मैं सोच रहा था कर रहा था। तो अब वो पियोन था, उसकी कहीं और जान पहचान थी अंदर, आकाश, वो सबको चाय पिलाते होंगे ले जाके, उसने पिलवा दिया और काम हो गया। एज सिंपल। आप कभी आकाश, जहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड पे लखनऊ में बड़ा बड़ा कि यहाँ अंदर आना निषेध है, वहां पे भी उन्होंने एक 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 चाय 3 रुपए कीमत होगी, 3 दिन की, उसकी उसने एंट्री दिला दी। और ये मेक शिफ्ट अरेंजमेंट चलते ही रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये, इसमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि नहीं कर सकते हैं, अनलेस कि आप कोई ऐसे वर्ड की कहानी लिख रहे हैं जहां पे मुश्किल है पार पाना। हाँ, Thank you so much. Thank you for your help. नमस्ते दिव्य सर, मैं अनुराधा हूँ और मैं अभी लखनऊ में ही हूँ। मैंने आपके कुछ वर्कशॉप्स पहले भी अटेंड जी किए जी 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 जी। तो मेरे साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि मैं जब भी किसी से बात करती हूँ वो मुझे अपनी लाइफ की सारी स्टोरीज बता देता है। लेकिन उन स्टोरीज को मैं कैसे यूज करूं, और मुझे एक अंदर से भी एक ये लगता है कि मैं उसकी स्टोरी क्यों यूज कर रही हूँ, एक कॉन्शियसनेस रहती है। तो उस कॉन्शियसनेस के चक्कर में या उस कॉन्शियसनेस के कारण मैं कुछ अलग ही प्लॉट सोचने की कोशिश करती हूँ जो शायद रियल में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता हो, वैसे कोई सोचता नहीं हो या वैसा होता नहीं हो, अनरियलिस्टिक लगे। तो इस डिलेमा से कैसे निकलना चाहिए, क्या ये सही है या नहीं है? ओके, तो पहले तो कभी ना, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि कभी दूसरों की कहानियां डायरेक्टली नहीं लिखनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत बोरिंग होती है। हम लोग बहुत बोरिंग जिंदगी जीते हैं ना, है ना। हम लोग के हमारी लाइफ कोई बड़ी इवेंटफुल थोड़ी ना, गिन के मैं निकालूंगा आज तक अपने 40 साल के जीवन में 10 दिन कायदे के होंगे, है ना, कि जब मुझे लगा कि हाँ मैं जिया। तो हम लोग की, मोस्टली लोगों की जिंदगी बोरिंग होती है। तो पहले तो अगर किसी की लाइफ को आप वैसे करेंगे तो वो एक तो सही ही नहीं है। इसलिए नहीं है कि आप किसी की लाइफ लिख रहे हैं, ऑब्वियसली आप परमिशन लेके लिख सकते हैं या बायोग्राफी जैसा लिख सकते हैं। उसमें ना देखिए, कहानी जो होती है ना, हम लोगों को कहानी में ड्रामा पसंद होता है, कॉन्फ्लिक्ट पसंद होता है। राम को सीता से शादी करनी थी, मैंने आपको क्लास में भी बताया होगा, और राम की सीता से शादी हो गई, ये कोई कहानी ही नहीं है। राम को सीता से शादी करनी थी, लेकिन सीता ने कहा नहीं मुझे नहीं करनी शादी। अब राम कैसे बनाएंगे तो कहानी होगी। राम और सीता शादी करना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके घर वाले चाहते थे कि दोनों अरेंज मैरिज कर लें, तो भी कॉन्फ्लिक्ट है। राम और सीता कहते नहीं हम तो लिव इन में रहेंगे, तो भी कहानी में कॉन्फ्लिक्ट है। आपको कहानी को ना, देखिए एक बहुत सही, मेरे को याद आ गया आपके बात से, एक जैसे शतरंज, पता नहीं आपने देखा शतरंज में ना, अगर आप देखेंगे चेस बोर्ड में, तो जो प्यादा होता है जो सबसे कमजोर माना जाता है, फिर वजीर होता है। अगर आप सोचेंगे तो वजीर के पॉइंट ऑफ व्यू से और राजा के पॉइंट ऑफ व्यू से ना बोर्ड अलग दिखता है, लेकिन एक प्यादे के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत बोर्ड ड्रामेटिक लगता है, जो आगे लड़ने जा रहा है सबसे पहले उसको मरना है। तो जब आप कहानी जब दूसरे की लेते हैं, कोई एलिमेंट लेते हैं, देखिए हम लोग इस दुनिया के बाहर से कुछ नहीं ले सकते, हम एलिमेंट ले सकते हैं, कोई उसकी आदत ले सकते हैं, लेकिन पूरी कहानी लेने में खतरा है कि वो बोरिंग हो जाएगी। तो जो आप पलेदा प्लॉट पे निकल जाते हो तो आप सही करते हो, क्योंकि शतरंज चेस बोर्ड जो होता है वो प्यादे के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा ड्रामेटिक होता है, क्योंकि उसकी गर्दन कटती है सबसे पहले, लेकिन राजा सबसे बाद में मरता है, मरता भी नहीं है कई बार, है ना, हम बीच में ड्रॉ कर लेते हैं, बाकी लोग मर जाते हैं। तो जब आप
किसी भी कहानी को ना उसके सबसे ड्रामा वाले पॉइंट से पकड़े। किसी भी कैरेक्टर को जब वो सबसे वल्नरेबल होता है, ये कोई मैं रूल की तरह नहीं बता रहा, तब पकड़े। जैसे मान लीजिए अगर मैं एक चोर की कहानी लिखता हूँ जो 35 साल का हो गया है और अब उसका पैर उतनी तेजी से नहीं चलता और अब उसको कोई काम नहीं आता दुनिया में सिवाय चोरी के, अब वो उतनी तेजी से नहीं भाग सकता, तो वो क्या करेगा, वो क्या नहीं करेगा। तो वो जो बात है ना कि किसी भी कैरेक्टर की, कि कोई ऐसा टीचर है जो पढ़ाना भूल चुका है, जो नहीं अपडेट कर पा रहा अपने आप को। एक बड़ी अच्छी फिल्म भी कोई आई थी इसी तरीके के, उस पे मैं नाम भूल रहा हूँ। तो आप वैसे पकड़ेंगे तो आप कहानी, आप कभी भी ना, जब भी आप इस प्रेशर में रहेंगे कि मुझे रियलिटी बतानी, तो रियलिटी हमेशा बोरिंग होती है न्यूज़पेपर की तरीके से। वो फैक्ट्स होते हैं, वो फैक्ट्स कभी आपको लेके नहीं जाएंगे। फैक्ट्स इसीलिए एक दिन में देखिए ना न्यूज़पेपर खत्म हो जाता है, रोज न्यूज आती है, रोज खत्म हो जाती है, हर घंटे न्यूज आती है, खत्म हो जाती है। लेकिन अच्छी कहानियां हमेशा स्टे करती हैं, क्योंकि उसमें ऐसा इमोशनल, एक ऐसा ड्रामेटिक एंगल होता है जो आपको उस क्राइसिस से की वजह से याद रहता है। तो आप भले कैरेक्टर्स के वो लें, आदतें लें, उनके कॉन्फ्लिक्ट लें, लेकिन पूरी जिंदगी उनकी न लें। और आप अगर अपनी तरफ से ऐड नहीं कर रहे हैं तो फिर वो कहानी भी सही नहीं बनेगी। आपको अपनी तरफ से इमेजिनेशन ही तो सारा खेल है कि, और इस बात की चिंता ना करें जो आपका डर है कि वो रियलिस्टिक नहीं लगती, क्योंकि इस दुनिया में आधे से ज्यादा चीजें रियलिस्टिक नहीं लगती। अब वो तो ऐसे तो मैजिकल रियलिज्म लिखने वाले वो मार्क्वाइज कहते ही थे ना कि मैं कभी ये नहीं लिख सकता अखबार में कि कल मैंने 7 हाथियों को बाजार में देखा, लेकिन मैं अपने फिक्शन में लिख सकता हूँ कल आसमान में 7 हाथी निकल रहे हैं, और वो लोग बिलीव करेंगे अगर आपको उनको सही तरीके से पकड़ेंगे तो। फिल्मों में ऐसा कई बार होता है। वो राजू सर की एक फिल्म है 3 इडियट्स में, वो लास्ट में जब डिलीवरी कराते हैं, विच इज पॉसिबल इन 1 लाख में से 1 चांस ऐसा है कि ऐसे डिलीवरी हो पाए, बट क्या वो फिल्म में संभव दिखता है? वहां पे जब देखते हैं तो लगता है अरे आजकल RRR आई है, मैं देख के आया था, तो वो जो उसमें स्टंट है वो पॉसिबल ही नहीं है ना, इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन और वो सब हो जाए कि एक बुलेट पूरा वो बिल्डिंग उड़ा दे रही है, सब कुछ कर दे रही है। बट वहां पे जब अंधेरे कमरे में हम देखते हैं तो वो पॉसिबल होता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका कहानी का ट्रुथ क्या है। असली ट्रुथ से कोई मतलब नहीं है, इस दुनिया में ट्रुथ की कोई वैल्यू नहीं है। आपका ट्रुथ जो है उसकी वैल्यू है, उस फैक्ट का कोई मतलब नहीं है। फैक्ट इज बोरिंग, उसमें कोई भी नहीं है। मुझे लगता है इस लिहाज से आप कहानियों को पूरा करें तो आपको समझ में आएगा उस कहानी को अलग, जितना ज्यादा उसमें ड्रामा, जितना ज्यादा क्राइसिस में पकड़े आप। कहानी में जरूरी नहीं है कि ड्रामा हो बहुत ज्यादा, उस कैरेक्टर में क्राइसिस पॉइंट पे होगा तो आपको वो पूरी हो जाएगी कहानी जो आप फंस रहे हो। शालिनी का हाथ उठा हुआ है मेरे ख्याल में। आप Shalini, you would like to go next? Yeah. हाँ, नमस्कार दिव्य प्रकाश दुबे जी, शाली शुक्ला दिस साइड। मेरा एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। मैं भी अपनी पहली पुस्तक लिखने का प्रयास कर रही हूँ कि जब आप लिखते हैं तो आपकी स्टाइल जो भी है, अच्छी बुरी, गुड बैड अगली, जो भी है, आप पहली बार ट्राई कर रहे हैं, आपके दिल में कुछ भाव हैं, आपके दिमाग में कुछ ख्याल हैं, आप उसको लिखना चाह रहे हैं, तो वहां पे एक दुविधा होती है कि आप अपने जो भी आप द सोल ऑफ whatever you're writing, उस पे आप ऑनेस्ट रहें, या आप मार्केटेबिलिटी देखें, लोगों को पसंद आएगी वो देखें, लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे देखें, या जो भी आप लिख रहे हैं, जैसा भी लिख रहे हैं, मे बी द क्राफ्ट इज नॉट देयर, मे बी हो सकता है बोरिंग भी शायद लोगों को कुछ लगे, समझ में ना आए। शुड यू कंसिडर दैट, आप उसकी परवाह करें, या जो आपकी आत्मा बोलती है लिखने को, या जो आप लिखना चाहते हैं, जो आपकी तरफ से नेचुरली आ रहा है, आप उसके साथ जाएं? मेरे ख्याल में देखिए, जो मार्केट में क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा ना, वो आप कभी सेकंड गेस नहीं कर पाएंगे। मैं आज से 3 साल पहले आपको बताता हूँ कि टीवी में कैसे रिसर्च होती थी। अब आज की डेट में जो रिसर्च होती है टीवी में, जो कि प्रोग्राम अच्छा है खराब है, कौन सा शो अप्रूव होगा, उसमें क्या होता है, यहाँ पे 20-25 वो चिपका देते हैं आपके उसमें, जैसे स्लीप टेस्ट में चिपकाते हैं, और आपसे सवाल नहीं पूछते वो एंड में, वो एपिसोड दिखाते हैं, जज कर लेते हैं कि शो अच्छा था कि खराब था, है ना। इस लेवल पे चीजें हो चुकी हैं 3 साल पहले। बावजूद इसके कि नेटफ्लिक्स से लेके हर कोई इतना पैसा डाल रहा है इस पूरे मार्केट में इन चीजों में, वो अभी तक ऐसी कोई इक्वेशन नहीं बना पाए कि अच्छी कहानी का इक्वेशन ये है। और यही सबसे अच्छी बात है, यही सबसे बड़ा सेवियर है एज अ क्रिएटिव। तो मुझे लगता है किसी भी स्थिति में मार्केट
या कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो है, देखिए आप उसका नहीं सोचना चाहिए। जैसे एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं मनीष शुक्ला, बहुत अच्छे शायर हैं, आप लोग अगर शायरी में इंटरेस्ट हो तो आप गूगल करके उनको सुन सकते हैं, बहुत ही अच्छा लिखते हैं। वो एक बड़ी सही बात बोलते हैं कि यार दिव्य, मुझे अगर गिटार बजाना आता है ना, तो अगर मार्केट में तबले की डिमांड है तो मैं तबला नहीं सीख जाऊंगा, मुझे तो गिटार बजाना ही आता है। तो आप को जो आता है आप वही करें, और आई एम श्योर ऑडियंस आ जाएगी। वैसे लोग जो आपको अच्छा लग रहा है ना, वैसे लोगों को वो बात टच करेगी धीरे धीरे। शुरू में हो सकता है समय लगे ज्यादा, कई बार वो होता क्या है, कई बार हम देखते हैं कि लोग इजी ट्रिक लेके ज्यादा बेच ले रहे हैं, ज्यादा लोगों तक पहुंच जा रहे हैं, बट लॉन्ग रन में वो टिकता नहीं है, और बहुत कम चांसेस है वो टिके। मतलब मैंने तो नहीं देखा ऐसा, क्योंकि जैसा मैं लिख रहा था मैं वैसा ही लिख रहा था, अगर कुछ नया ट्रेंड चल रहा होता तो मैं वैसा नहीं लिख पाता। तो एज सिंपल एज दैट, मुझे लगता है कि आपको जो आपको लग रहा है बस वही सही है, वो आपका सही। और देखिए एक चीज और है ना, किताब लिखते समय जो सबसे, इस पूरी दुनिया में किताब से ज्यादा डेमोक्रेटिक स्पेस नहीं है, आप किसी को भी कुछ भी लिख सकते हैं, कोई आपको नहीं आ रहा है मारने ना, और अगर ऐसा आ रहा है तो किताब वैसे भी पॉपुलर हो जाएगी, अगर कोई किताबें खुदा न खास्ता कोई आपको वो कर दे तो इसलिए आपको जो लिखना है आप आराम से लिखिए, और कहीं पे कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। वो लोगों को, आपको अच्छा लगेगा, वो लोग पिक कर लेंगे। मैंने हर किसी के साथ, जिसने भी मार्केट के साथ कोशिश की है, मैंने भी एक आध बार की है, वो हमेशा फेल होता है, उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि तब तक जब तक आप लिख के निकालेंगे तब तक मार्केट का ट्रेंड बदल चुका हो। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। We would like to make this the last question because we are already above the time, I guess. Chetan, would you like to take over from here? Yeah, Nidhi, I see that your hand is up. लेकिन अभी हम और सवाल नहीं लेते। एक ले सकते हैं सर, अगर आप लोग जैसे भी करते हैं, अगर एक लेना है मैं 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। No, मुझे भी that is भागना है। okay, Chetan, because partially Shalini had asked what I wanted to ask. So, Namaste, Okay. Divya Prakash ji. आपने वो partially answer कर दिया है, because Okay. my question basically was कि आपने जब कहा था कि 20 साल का बच्चा आज कैसे सोचता है, लेकिन जब मैं कोई भी अपनी कहानी सोचती हूँ तो मेरा वो 90s early, you know, late 90s early 2000s में ही दिमाग अटका रहता है, और वही that is what I find fascinating also when I'm writing. तो मैं लाना ही नहीं चाहती हूँ फेसबुक को, Web3 को आज की अपनी कहानियों में। तो इज दैट समथिंग आई एम मिसिंग आउट, इज सम वाज माय क्वेश्चन, पर वो आपने खुद ही बोल दिया कि अपने दिल की सुनो और उसी में आगे बढ़ो। और क्या, मतलब नॉस्टैल्जिया में बहुत कुछ मैम नया है। आप अगर आप करना चाहें तो 90s कोई खत्म नहीं हो गया है अभी वहां पे मसाला, इट्स जस्ट दैट कि वो नया एंगल आप क्या ला रहे हो, बस इतनी सी बात है। जी जी। तो वो कोई 20 साल का लड़का हर कहानी में नहीं सोचता, मैं उस स्पेसिफिक कहानी के लिए मैंने वो बात बोली थी कि वहां पे जो सोच रहा है मुझे वो चाहिए था वो 20 साल का, तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं आप प्लीज लिखे। अभी 90s तो मुझे नहीं लगता है कि 90s बनारस की तरह कभी खत्म नहीं होगा। जी। और दूसरा मेरा, इट वाज जस्ट अ पर्सनल रिक्वेस्ट, आई हैव बीन फॉलोइंग यू ऑन इंस्टाग्राम, और आपने एक बार एक रील सीरीज शुरू करी थी जिसमें आप पब्लिशिंग, हिंदी पब्लिशिंग के बारे में थोड़ा बता रहे थे, बट दैट सडनली अब्रप्टली यू स्टॉप्ड, सो जस्ट अ रिक्वेस्ट इफ यू कैन कंटिन्यू। चेतन सर ने मुझे बोला कि पैसे लेके बताया करो ये सब। Okay, so please talk about your workshops also then. नहीं सर, वर्कशॉप एक हो रही है मेरी, अभी हम लोग करेंगे बहुत जल्द, तो इसी आज मैं प्रीकर्सर में आया हूँ मैं आप। जी सर, ओके, थैंक यू। इसे लांछन कहा जाता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा दिव्य प्रकाश जी को। दिस इज डेफेमेशन एंड दिस इज लाइबल एंड दिस इज ऑल रॉन्ग, बट आई thoroughly enjoyed your session दिव्य प्रकाश जी। थैंक यू। बहुत ही मजा आया आपसे बात करके और आपकी बातें सुन के। आई एम एक्चुअली फीलिंग बैड कटिंग इट शॉर्ट, लेकिन हम लोग यूजुअली एट द एंड ऑफ द सेशन हम लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ी बहुत राइटिंग के बारे में भी बात करें, क्योंकि इतना बड़ा ग्रुप है, इनका एक मकसद है, and the goal that everybody has here is that you write. So and in the last few FDCs we have had phenomenal output in terms of, मतलब हम कुछ ऐसा, we don't read other people's work, we just want them to find value, that if they signed up for something they actually do the writing that they promised to do. But I was very disappointed when I saw the amount of words in our tracker, because it's showing a total of only 22,000 words, and this is despite the fact that 10 days have already gone by. So 10 days में तो हम लोग as a normal as a group हम लोग 1 लाख वर्ड्स अभी तक हमने लिख लिए होते, लेकिन इस साल पता नहीं क्या बात है कि हमने, इस बार पता नहीं क्या बात है कि हमने खाली 23,000 वर्ड्स लिखे हैं।
even with slightly fewer participants, कम से कम 60-70 words on average. So I know that I have also been a little away for the last 10 days, but I'm back now. जो मेरा distraction था, we had a big group of writers from the US and we were all working on a retreat. So I have said goodbye to them today. They are still in the country, but they're not my responsibility anymore. So I'm back, and from tomorrow we will start writing prompts. We will be much more active in the group. But I would like everybody here to really work hard to come back to your commitment of writing in this month. आप सबने एक गोल डाला है, जो आपने गोल के लिए साइन अप किया है. That goal is a very high number, because the total of that target word count is the total of the target word count is about 7 lakh words, जिसके सामने अभी तक हमने खाली 23,000 words किए. तो दिव्य प्रकाश, आपको आपका corporate world याद आ रहा होगा, except यहाँ पे there is no profit motive, there is no revenue. Our only currency is the number of words written. So I would really मुझे like अच्छा लग रहा है, काश मुझे पहले किसी ने ऐसे कराया होता तो मैं एक आध किताबें और लिख लेता. नहीं, तो I'm just very hopeful कि अब everybody will pull up their socks, अपना जरा enthu बढ़ाएं, खुद को motivate करें, अपने नहीं, office. but I'll just add one thing, सर, ये बहुत अच्छा आप टारगेट दे रहे हो. इनफैक्ट I'll tell you one thing, जो पहला नॉवल मैंने कंप्लीट किया था, मैंने डिसाइड किया था, मैं एक फ्राइडे आया, मेरे बचे हुए थे कुछ पेजेस, मैंने छुट्टी ली और मैंने ये सोचा था अब मैं तभी उठूंगा कुर्सी से जब मैं पूरा कंप्लीट कर लूंगा. मैं 3.5 दिन में सोया नहीं था उसमें, मतलब ऑन एंड ऑफ 1-2 घंटे सो के. एंड इट वाज अ वेरी बैड ड्राफ्ट, बट मैं आपको बता नहीं सकता, जो पहला खराब ड्राफ्ट भी आप खत्म करते हो, इस दुनिया में 99% लोगों से आप आगे निकल जाते हो वैसे ही. इट्स अ वेरी बिग थिंग. मतलब मैं 6 किताबें लिखने के बाद बता रहा हूँ कि पहला ड्राफ्ट, वो इससे ज्यादा बड़ी खुशी की क्या बात होगी कि एक चीज आपने पूरी की, जो ये बहुत बड़ा वो है. और आई एम श्योर ये टारगेट वाला अप्रोच बहुत ही अच्छा है और ये वर्क भी करता है. और that's a very inspiring story. And the important thing is कि हमने किसी को टारगेट नहीं दिया है, सबने अपने आप को टारगेट दिया. कोई 10,000 वर्ड लिखना चाह रहा है, कोई 60,000 वर्ड लिखना चाह रहा है. हमने कह रहे हैं कि भैया आप इतने लिखो, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने कमिट किया है तो आप फिर उस पे अपने प्लान पे आप खुद you have to work, you have to focus. And to the question that Namrata had, somebody had, so I'm very, very thrilled and I'm really looking forward to this. But Divya Prakash ji will be doing a Hindi writing workshop with us in July, mid-July. उसका link हमने यहाँ पे share कर दिया है. And we will have further conversations. This conversation will go on to YouTube, but only after April, I think in May sometime. And हाँ, तो जुलाई में हम लोग, दिव्य प्रकाश जी हमारे पास एक्चुअली हिमालयाज में आएंगे. वो कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि उन्होंने बता ही दिया कि वो पहाड़ों में आके भी लिखते हैं, लेकिन वो हम लोगों को लिखना सिखाएंगे, थोड़ा बहुत हमारे को हेल्प करेंगे. So that will be forward. ठीक है जी. And so from tomorrow, come on guys, pull up your socks and चलो अब जरा आगे बढ़ के पूरा अपना जो हमारा टारगेट है कम से कम वो तो उसके आसपास तो पहुंचे, ठीक है. And tomorrow morning onwards, writing prompt every day till the end of every series, sir. ठीक है. All the best. Yeah. All the best guys, all the best. All the best. Bye. Thank you. Thank you so much. Bye.